World News Headquarters. السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید. میں ہوں رافع مرزا. میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد. ہیڈ لائنز سامنے جانی عام خبروں میں آپ جان سکیں گے. مجرم فیصلہ کیوں کرے گا؟ گھڑی کہانی ناکام شو قرار. بلاول بھٹو کا اعتراف. اور ٹائٹل کے حصول کی جنگ. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مفرور مجرم ملک کے فیصلے کر رہا ہے. کیسا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ نواز شریف کو مجھ سے کوئی غرض نہیں. یہ اسے ہی تعینات کرے گا جو مجھے نااہل کرے گا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے یہ حکومت بزدل ہے اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہے. 1 سال بعد بھی الیکشن ہو تو تحریک انصاف ہی جیتے گی. اگر ملک دیوالیہ بھی ہو جائے تو نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قانونی طور پر شہباز شریف کو اہم فیصلے کا اختیار ہے لیکن یہ فیصلہ اصل میں نواز شریف ہی کرے گا. اپنے کیس بھی ختم کرائے گا. جمہوری ڈنڈے یا بندوق کے زور پر نہیں چلتی. مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. چوروں کو مسلط کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ ارشد شریف، اعظم سواتی اور میرے کیس سپریم کورٹ میں ہیں. آپ ہمیں انصاف دلوائیں. انصاف کے لیے ہم آپ کے سوا کہاں جائیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. ایک سابق وزیر اعظم بھی مقدمہ درج نہیں کرا سکتا. آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا، تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے، لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزا یافتہ جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتے؟ اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ فیصلے کرتا ہے اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے. وہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑے گا کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہا کیونکہ اسے ہار جانا ہے. آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا. اور ہے بڑا بزدل آدمی، کرپٹ آدمی ہوتا ہی بزدل ہے. جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں. یہ تینوں لینڈ مارک کیسز اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. دوسرا اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے. اور تیسرا میرا کیس ہے، ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا، پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے. اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا، بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف، یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ تحریک انصاف میں شمولیت کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعیت کے مولانا شیرانی صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. قاسم سوری کا ژوب میں خطاب، کہا جمعے کے روز کوئٹہ سے لانگ مارچ روانہ ہوگا. انشاءاللہ مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے آپ کے تاریخی شہر ژوب آئیں گے. مجھے یقین ہے کہ ژوب کے غیور عوام حقیقی آزادی مارچ میں شریک ہوں گے. جو لوگ آج پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں ان سب کو میں پاکستان تحریک انصاف میں خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا شیرانی صاحب وہ شخصیت جو ہمیشہ اصول پرستی کی سیاست کی، آج عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جمعے کے دن یا آنے والے جمعے کے دن انشاءاللہ کوئٹہ سے حقیقی آزادی مارچ شروع ہوگی بلوچستان کی. ہم انشاءاللہ کوئٹہ سے کشراک اور خانہ زئی، کان متر زئی، مسلم باغ، قلعہ سیفلا سے ہوتے ہوئے آپ کے اس تاریخی شہر ژوب میں آئیں گے کہ ژوب کے لوگ حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ژوب کے لوگ بھکاری نہیں ہیں، ژوب کے لوگ غلام نہیں ہیں.
सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं हुए तो होने चाहिए। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर में मुलाकातों का इल्म नहीं, वक्त का मुकाबला चल रहा है। 30 नवंबर से पहले आरिया पार हो जाएगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी पहुंचकर आगे का लाहे अमल इमरान खान को ही पता है। हफ्ते या इतवार को कमेटी चौक पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान को पता है, मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा था कि नवंबर का आखिरी 10 दिन पड़े हैं, मैं इसका नहीं मुझे पता, ये मुझसे बड़ा सवाल है, इसीलिए तो मैं टीवी पे जा नहीं रहा। नहीं मुझे पता ही नहीं है, वाकई नहीं पता। मेरी बात खान साहब से आज हुई जरूर है, लेकिन मैंने ये बात हमसे नहीं पूछी। देखिए, मुज़ाकरात के चांसेस हैं या नहीं है, हुए हैं या नहीं हुए हैं, सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। मुझे नहीं पता हुए हैं या नहीं हुए हैं, होने चाहिए अगर नहीं हुए तो। वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त है, आखिरी ओवरों का मैच है, 5 ओवरों का 30 ओवर का आखिरी पावर प्ले है। 30 नवंबर से पहले आर पार हो जाए। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी ने सवाल उठा दिया, कहा कि अगर हमारा काफिला नहीं है तो बताएं इस्लामाबाद में कंटेनर्स क्यों लगाए हैं, इमरान खान के खिलाफ आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती हैं, बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए मलिका बुखारी का कहना था कि इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए, उनकी सियासी सिमत नहीं, ये सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं। PDM जानती है वो सियासी तौर पर दफन हो चुकी। मलिका बुखारी ने वाज़ेह किया कि PDM की सफ़ों में घबराहट है, PDM 13 जमातों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। लॉन्ग मार्च से फर्क नहीं पड़ता, और अगर हमारे पास 72 या 313 का काफिला है ही नहीं, तो हमें ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स का एक आपने मजमुआ क्यों लगा लिया है, इस्लामाबाद को हिसार के अंदर कंटेनर के अंदर बंद क्यों कर लिया है, कि आपकी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इमरान खान के ऊपर गलाजत फेंकी जाती है। अल्लाह का करम है कि उस आदमी को इतनी इज्जत दी है कि कीचड़ उछालने के बाद भी वो साफ है, इनकी सियासी सिमत कोई नहीं है। अब ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, ये बेबुनियाद सियासी मुकदमे कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरन और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आज़ादी राय के इजहार से जबरन रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये इनकी सियासी सिमत है। जाहिरी बात है कि इनकी सफ़ों के अंदर घबराहट है, तो इन 13 जमातों का तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कोई फ्यूचर नहीं है। PDM की जो 13 जमातों का एक मजमुआ है, वो ये जानते हैं कि सियासी तौर पर वो दफन हो चुके हैं। खबरों में आगे देखिए 51 करोड़ का खाना, और सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत पैसा पानी की तरह बहाने लगी है। वफाकी दारुल-हुकूमत पे तैनात पुलिस एहलकार 51.5 करोड़ रुपए का खाना खा गए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना से मज़ीद फंड्स का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में पुलिस और FC के 13,000 अफसर और एहलकार तैनात हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक हर एहलकार को रोज़ 660 रुपए का खाना दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रास्ते बंद करने के लिए 1300 कंटेनर्स में बेशतर जबरी कब्जे में लिए गए हैं। नफरी को मुख्तलिफ जगहों पर रखने के लिए टेंट भी जबरी तौर पर हासिल किए गए हैं। तमाम नकलो हरकत पर 60 रोज़ में 1 करोड़ से ज़ायद खर्च किए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ और PTI शाना बशाना। हुसैन इलाही कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग में तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मूसा इलाही की इमरान खान पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा मुस्लिम लीग काफ और PTI एक साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों से हकीकी आज़ादी मार्च को नहीं रोक सकती। ये हकीकी आज़ादी की ये लड़ाई है, जो जंग है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म शाना बशाना खड़ी है। उनके ये जमातों से बहुत आगे निकल चुका है। इधर ना कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, ना ही कोई तरीके इंसाफ है। इधर हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने वाला खुद फ्रॉडी और मफरू निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। तहरीक इंसाफ ने मन घड़ी कहानी को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं कप्तान के खिलाफ जब कोई केस नहीं बन सका तो ये ऊंचे हटकंदे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असद उमर कहते हैं ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं तोशाखाना तहाइफ की खरीदारी के लिए PTI ने फीस 10% से बढ़ाकर 50% की। शहजाद अकबर ने फ्रॉडी बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि ये शख्स खुद इंटरपोल को मतलूब है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ घड़ी गई घड़ी कहानी। इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाला खुद फ्रॉडी और मफरूर निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं ये कभी सीखेंगे भी या नहीं। अपने ट्वीट में लिखा, इन झूठी दास्तानों का पिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफीन ही काफी हैं। फवाद चौधरी ने अपने रद्द अमल में लिखा, जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो केस ये बनाया गया। सबसे पहले तो ये कि $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वजीर आजम को तोहफा नहीं दी गई। तोशा खाना के तहफ़ खरीदने के लिए कानूनी तौर पे मुकर्रर मालियत का 10% दिया जाता था। PTI ने ये शरह 10% से बढ़ाकर 50% कर दी। शहबाज गिल भी अपने कायद के दिफा में आगे आ गए। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, तोशा खाना को एक बार लॉन्च किया गया, इस बार एक इंटरनेशनल 2 नंबरी के साथ। ये मंजन अब नहीं बिकने वाला। कौम सब कुछ जानती है, अब चांद पर जितना थूकेंगे उतना ही मुंह पे गिरेगा। सेनेटर बाबा रहमान ने लिखा, भगौड़ों के हक में एक और भगौड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। लिखा, बोलने वाले, लाने वाला और दिखाने वाले सुन लें, देखने वाले तुमसे ज्यादा बाशऊर हैं। और दूसरी जानिब साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने घड़ी कहानी को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम शो करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज फिर नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इम्पोर्टेड सरकार ने पहले फैसल वाडा को कुर्बानी का बकरा बनाया, अब अपने ही जैसे फ्रॉडी उमर फारूक को सामने ले आई। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि उमर फारूक एक बदनाम शख्स है। ये शख्स किसके हाथ में खेल रहा है सबको मालूम है। इम्पोर्टेड सरकार है, ये खुद फ्रॉडियों की एक हुकूमत है। पूरी फ्रॉड, मनी लॉन्डर और इस मुल्क को बेचने वाले लोग आज फिर एक अपने जैसे एक फ्रॉडी उमर फारूक को आज ये सामने लेके आए हैं, जो खुद जिसको नॉर्वे से निकाला गया है, इंटरपोल को मतलूब है। ये उमर फारूक फ्रॉडी की बात कौन सुनता है पाकिस्तान में? बयानिया बनाने वाले का नाम है इमरान खान, जिसको 22 करोड़ अवाम सुनती है। उमर फारूक जो है वो एक रिनाउंड फ्रॉडस्टर है। सबको पता है उनकी हकीकत क्या है और उनके ऊपर जो भी इंटरपोल में और नॉर्वे से ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ से भी फ्रॉड करके भागे हुए हैं। इतनी महंगी घड़ी जो एक दूसरे मुल्क में अगर दी हुई हो तोहफे पे, फिर तोशा खाना से जो भी ये कह रहे हैं, तो उस पे अगर हो तो उनके पास कोई साइन डॉक्यूमेंट होगा कि ये उनकी फुल उनकी ओनरशिप आ गई है इसके ऊपर। जिनके हाथों ये खेल भी रहे हैं वो भी वाज़े तौर पे सबको पता है। इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया नोटिस ले अपनी दरखास्तों पर PTI के सेंटर से अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की क़यादत में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। सेंटर्स ने दरख्वास्त की कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। आज़म स्वाति पर मामलाए कानून तशद्दुद किया गया। साफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अदालत उज़्मा तमाम मामलात का नोटिस ले ऐवान बाला के अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। इंसानी हुकूक खत्म कर दिए गए, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आला अदलिया नोटिस ले अपनी दरखास्तों पर PTI के सेनेटर्स ने अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की क़यादत में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। सेनेटर ने दरख्वास्त की कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। सेनेटर आज़म सवाती पर मावराए कानून तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अदालत उज़्मा तमाम मामलात का नोटिस ले। मुद्दई का यह हक है कि वो अपनी मुद्दईयत में अपने नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करे, और वो हक भी नहीं मिलता। आज़म स्वाति साहब के साथ नाइंसाफी, क्या वो आइन की धज्जियां बखेरने में एक नए बाब का इजाफा नहीं? मुद्दई का हक है कि इसकी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज की जाए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पर होने वाले हमले की FIR दर्ज ना करवा सके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सेनेटर आज़म सवाती को इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करते हैं। सेनेटर्स ने कहा कि इस हुकूमत में इंसानी हुकूक मुकम्मल ख़त्म कर दिए गए हैं। ये निज़ाम जिसमें के इंसाफ न मिले लोगों को, चेयरमैन लीडर जिसको के चाहने वाले इस पूरे मुल्क के तूल अर्ज में हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल सका, तो बाकी लोग क्या हैं?
ऐवान बाला के अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया, जिन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और यहाँ आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च के हवाले से पुरअज़म लंदन, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत लॉन्ग मार्च नहीं रोक सकती। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता, हम अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े। खान साहब, जब आप रावलपिंडी में पहुंचेंगे, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बड़ा काफिला आपको रावलपिंडी में ज्वाइन करेगा। जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दी है इमरान खान साहब ने, उसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानी भी उतने ही जोश में हैं और उनका साथ देने के लिए एक्साइटेड हैं। हम वहाँ पे पहुँचेंगे और भरपूर पहुँचेंगे और अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएंगे कि वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ना मंजूर। पाकिस्तानी अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करें, तमाम खवातीन को आगे लेके आएंगे। हम खान साहब के साथ हैं, जो लॉन्ग मार्च को हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो। ये आज़ादी मार्च इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी और हम इमरान खान के साथ हैं। जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लोग तो बाहर हैं, लोग जाग उठे, उनको अब आप पीछे नहीं कर सकते। हकीकी आज़ादी मार्च के जरिए हम अपने इस जमहूरी मुतालबे को इंशाल्लाह मनवाएंगे। इमरान खान जो जहाद इस वक्त लड़ रहा है, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए ये फर्ज है कि इस जहाद में हम उसके शाना बिशाना होकर लड़ें। जिस बड़ी तादाद में आवाम बाहर आई है, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये मार्च जरूर कामयाब होगा। जैसे आप पाकिस्तान में बाहर निकले हैं, उसी तरीके से हम पूरे यूरोप में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आज़ादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।